this video we will learn about mathematical reasoning and logic. What is a statement? The first thing which we have to understand in this chapter is statement or proposition. According to mathematical language, a statement is a sentence which is either true or false. Both are acceptable. दोनों नहीं हो सकते. So if I say 3 is an odd integer, it is a statement. But if I say pi is a cool number, now this is not something for which I can say true or false. If I say that give me a cup of tea, I don't know whether it is true or false. But if I say sun rises in east, then definitely this statement is true. If I say sun rises in my right hand, then it is neither true nor false because it depends. Sometimes it may rise towards my right and sometimes it may not. तो जो sentences होते हैं जिनका आंसर आप true false में नहीं दे सकते हो, वो जो sentences हैं मैथ्स के हिसाब से they are not called statement. If I say 4 is an odd integer, you may say that the answer is false, but it does not matter because this is a statement. Answer true या false होना चाहिए. अगर true है तब भी वो statement कहलाएगी, अगर false है तब भी वो statement कहलाएगी. But if it is neither true nor false or something which you cannot decide upon, then you say that it is not a statement. It is going to rain today. I don't know. It depends on weather. It depends on the condition that where are we living. Maybe I am living near the equator and it might rain, and maybe I am living somewhere where in desert, so it might not rain. So this is neither true nor false, and hence this is not a statement. Now what is negation? Negation का मतलब है, आप सिंबल देख सकते हो, कॉन्ग्रुएंसी जैसा सिंबल है और एक बार जैसा सिंबल है which is reflected in the slide, एंड इसका मतलब है आप चेंज कर रहे हो, ट्रू को फॉल्स में चेंज कर दो, फॉल्स को ट्रू में चेंज कर दो. ऑल ऑफ यू नो नेगेशन. इफ आई से यू हैव टू डू दिस, you do not have to do this. I have a pen, I do not have a pen. और if I say I do not have a pen, तो उसका negation क्या होगा? I have a pen. So this is what we have written here, that Boolean algebra या फिर mathematical logics में we use 1 for true and 0 for false. Now see this AND operator. AND का मतलब है हमने दो statements को जोड़ दिया है. अब दोनों statements को जोड़ने के बाद में उसका ट्रुथ टेबल कैसे बनाना है, उसके लिए एक और वीडियो है जो आप देख सकते हो, हाउ टू कंस्ट्रक्ट ट्रुथ टेबल. बट व्हाट डू यू मीन लॉजिकली? लॉजिकली इट मीन्स, अगर वेन डायग्राम से सोचोगे तो इंटरसेक्शन पार्ट विच इज रेड इन योर स्लाइड मीन्स दैट वी आर कंसिडरिंग एंड कंजंक्शन. अब एंड का मतलब है अगर दोनों ट्रू हैं तभी ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा. बिकॉज ये बीच वाला पार्ट जो रेड है, दिस इज ट्रू ओनली फॉर बोथ ऑफ देम. इसका मतलब कोई पार्ट, अगर कोई भी हमने एलिमेंट किसी भी जगह से लिया है एंड इफ इट इज बिलोंगिंग टू वन ऑफ देम, देन इट इज नॉट ट्रू. सो ट्रू की क्या कंडीशन है? बोथ ट्रू देन ट्रू. इफ वन ऑफ देम इज ट्रू, वन ऑफ देम इज फॉल्स, तो इट इज नॉट फॉल्स. एंड व्हाई आर वी आर हैविंग 4 केसेस? 4 केसेस बिकॉज ऑल ऑफ यू नो, अगर हमारे पास में देयर आर 2 थिंग्स विद अस, देन वी हैव 4 केसेस. आइदर इट इज ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, false true or false false. Now in case of AND, the only condition for truth is true होने की एक ही condition है, that it should belong to both the sets. Now see, this is OR. If I say that I have 2 things, one is either true, one is the other one is also true, then obviously it is true. बिकॉज ट्रू और का मतलब है वो दोनों में से किसी भी एक जगह लाई कर सकता है, एंड दैट इज बेसिकली इफ यू कंसिडर वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम में यूनियन का मतलब क्या होता है? और होता है. और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? एंड होता है. हमने पिछली स्लाइड में देखा था एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन. और का मतलब क्या होता है? यूनियन. सो यू कैन सी द ट्रूथ टेबल. अगर एक सेट में है दूसरे में नहीं है, ट्रू. एक सेट पहले सेट में नहीं है दूसरे में है, ट्रू. अगर दोनों ही सेट्स में है तो ऑब्वियसली इट इज ट्रू. बट अगर ये दोनों रेड पोर्शंस में नहीं है, दैट मीन्स ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? फॉल्स. एंड दिस इज व्हाट यू मीन बाय दी और ऑपरेटर. नाउ सी, दिस इज नॉट. ना तो सेट ए में है ना सेट बी में है. अगर सेट ए में भी नहीं है, सेट बी में भी नहीं है, तो इसका मतलब कहाँ है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन में है. कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी में है. सो यू कैन सी द ट्रुथ टेबल. ट्रुथ टेबल से अगर सेट पी में है, क्यू में भी है तो फॉल्स,
P में है, Q में नहीं है, false. Q में नहीं है, P में है, false. And it is true only if it is not lying both in P, and Q. इसका मतलब उसे कहाँ होना चाहिए? सेट्स की टर्म्स में अगर हम बात करें तो यूनिवर्सल सेट माइनस में A यूनियन B में होना चाहिए. Okay, this is what we say, represent by NOR. Now see this ZOR. Now ZOR का मतलब है कि उसको एक ही में होना चाहिए. Either it is A only or it is B only. दोनों में नहीं हो सकता है. So you can see the figure. Intersection part हमने white कर दिया है and the remaining two parts are red. And the truth table also shows कि intersection वाला false होगा. So true मतलब A में भी है, B में भी है, false हो गया. A में है, B में नहीं है, true हो गया. A में नहीं है, A में है, B में नहीं है, true हो गया. Now see, false is false. Neither it is in A nor in B. इसका मतलब अगर हम बाहर वाले white portion की बात करें तो भी आंसर क्या होगा? false. तो ZOR का मतलब है आपकी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, केवल एक कंडीशन. अगर एक कंडीशन ट्रू है दो में से, आप दो से ज्यादा कंडीशन भी नहीं ले रहे हो, आप दो कंडीशन ले रहे हो, दो में से एक ट्रू है तो फिर आंसर ट्रू होगा. अगर दोनों ट्रू है तो भी फॉल्स, दोनों फॉल्स है तब भी फॉल्स. नाउ सी दिस इज समथिंग फॉर विच वी कॉल इम्प्लाइज. इम्प्लाइज का मतलब क्या है? P इम्प्लाइज Q. नाउ सी द ट्रूथ टेबल हियर. ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, जो है आंसर फॉल्स. एक ही स्टेटमेंट में फॉल्स लिखा है, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स. अब ये कैसे आया? जस्ट सी द फिगर केयरफुली. इफ अ फिगर इज स्क्वायर देन इट इज रोम्बस. अगर स्क्वायर है तो वो रोम्बस भी होगा, करेक्ट है. इफ इट इज अ स्क्वायर देन इट इज रोम्बस, ट्रू. अगर हम इसको और पढ़ते हैं, इफ इट इज अ स्क्वायर देन इट इज नॉट रोम्बस, क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा. स्क्वायर है तो रोम्बस तो होना ही है, फॉल्स तो हो ही नहीं सकता है. वो ऐसा नहीं हो सकता कि रोम्बस नहीं होगा. सो इफ आई से इफ अ फिगर इज स्क्वायर देन इट इज नॉट रोम्बस, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स. देन इफ आई से इफ अ फिगर इज नॉट स्क्वायर, अब वो स्क्वायर ही नहीं है तो वो रोम्बस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. इज इट ट्रू? स्क्वायर नहीं है तो रोम्बस नहीं है, करेक्ट है. स्क्वायर नहीं है तो रोम्बस है, ये भी हो सकता है. सो ऑल दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू एक्सेप्ट द वन विच सेज दैट इफ अ फिगर इज स्क्वायर देन इट इज नॉट रोम्बस. अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है और सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स है तभी हमारी ट्रूथ टेबल फॉल्स बनती है, अदरवाइज it is true. You can see my one more video wherein I have tried to explain this concept in giving one more example. Now see this. This is called biconditional statement. Biconditional का मतलब है दोनों. अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है तो सेकंड भी ट्रू है, अगर सेकंड ट्रू है तो फर्स्ट भी ट्रू है. P implies Q and Q implies P. दोनों एक साथ होने चाहिए. अगर दोनों एक साथ होंगे तो बाइकंडीशनल है, अगर नहीं होंगे तो नहीं है. नाउ सी एग्जांपल. अ रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर इफ एंड इफ ओनली इफ द एडजेसेंट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. अब इसका मतलब क्या है? इफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन इट इज स्क्वायर. इफ रेक्टेंगल इज स्क्वायर देन द एडजेसेंट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी ट्रू है और कन्वर्स भी ट्रू है. अगर ऐसा है देन इट इज बाइकंडीशनल, अदरवाइज इट इज नॉट. सो फॉर बाइकंडीशनल हमें ट्रूथ टेबल याद करनी है. ट्रू ट्रू के लिए ट्रू होगा, फॉल्स फॉल्स के लिए ट्रू होगा, बट ट्रू फॉल्स और फॉल्स ट्रू के लिए क्या होगा? फॉल्स होगा. अगर दोनों ही स्टेटमेंट गलत है तब भी फॉल्स होगा. क्या हुआ इसका मतलब? अ रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर. कब? रेक्टेंगल स्क्वायर कब नहीं होगा? जब उसकी एडजेसेंट साइड्स क्या होंगी? इक्वल नहीं होंगे. सो इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स तब भी आंसर क्या होगा? ट्रू होगा. Now see, how do you write converse? If 2 points are collinear, then they lie on same line. If 2 points are collinear, then they lie on same line. This is true. Inverse क्या होता है? If 2 points are not collinear, then they do not lie on the same line and they are not collinear. Okay? And what is contrapositive? If 2 points are not collinear, then they do not lie on the same plane. Now let us try to understand this more through one more video in which I have tried to explain the concept of converse, inverse and contrapositive. Now how do we construct this truth table? That you can see here. P implies Q is called condition. Q implies P is called converse. Not P implies not Q is called inverse.
एंड नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P फॉल्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ये हमें याद करना है। P इम्प्लाइज Q, Q इम्प्लाइज P, कन्वर्ट हो गया। इन्वर्ट में क्या करते हैं, दोनों के आगे नॉट लगा देते हैं, तो नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या करते हैं, कन्वर्ट के आगे नॉट लगा देते हैं, तो नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P। और ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी, इम्प्लाइज की तरीके से बनेगी, इम्प्लाइज में जैसे बनती है वैसे ही बनेगी। ओके।